ठीक है, I've started recording. ठीक है, I'm gonna assume everyone is comfortable, everyone is confident with the concept of min cut and max flow and the idea of duality between these two. ठीक है, max flow अगर S से लेकर आपका T, आपका max flow कोई आ रहा था, let's say K was the max flow, then the min cut is also K. ठीक है, and that simply means अगर मैं let's say the example Sir probably gave you was water, the maximum amount of water that can flow from here to there was K, then the minimum capacity of the edges that I need to remove so that there is no path from S till T is also K. That is the idea of duality in this. ठीक है, so yeah, assuming that you guys are confident with the concept of duality and min cut and max cut, we're going to start with the actual Hall's theorem now. Now, the Hall's theorem basically states that in a bipartite graph, and that graph is going to be represented as G, comma L, comma R. ठीक है, and it has some set of edges E. ठीक है. First, let's understand what a bipartite graph actually is. A bipartite graph is basically a regular graph, but it's a graph that you can section into two parts or two groups. Each group will have some set of vertices. ठीक है. This is your group L. This is your group R. ठीक है. Currently, I've shown that there doesn't necessarily have to be the same amount of vertices in both groups, but Hall's theorem के अंदर there are the same number of vertices. ठीक है. खैर, अब हम क्या कहेंगे? अब हम कहेंगे कि a bipartite graph is basically a graph in which the vertices can be arranged into two groups such that every edge in that graph is basically a connection between some node on the left and some node on the right. So every edge in G is basically किसी को यहाँ से मिला रहा है, किसी को वहाँ तक मिला रहा है. ठीक है, और डबल डबल कनेक्शंस भी अलाउड हैं. ठीक है, so something like this. ठीक है, so this could be, obviously double edges are not allowed and you guys know the regular stuff. ठीक है, there's no constriction on कि हर किसी के पास edge होगा, किसी के पास इससे ज़्यादा edges नहीं हो सकते. Obviously, if the size of this guy is L and the size of this guy is R, no vertex on this side can have more than R edges connected to it. Sorry, R edges connected to it. You know, because at most he'll be connected to every guy on the right. उससे ज़्यादा होगा तो किसी से double connect कर रहा होगा. So any edge, so any guy on this left side, vertex जितने भी हैं, this guy cannot be having an edge to someone on the same side. That's the simple idea of a bipartite graph is just okay, the graph can be partitioned into two set of groups where each set of groups has some set of vertices where any edge in the graph is a connection between some node on the left and some node on the right. That's a bipartite matching. No edge can connect a node on the left to another node on the left. Okay? If you can partition a graph into two such groups, then that is automatically a bipartite graph. Okay? Now Hall's theorem, hold on, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Now Hall's theorem simply states that we're going to be working with a bipartite graph in which दोनों sides पर equal nodes हैं. I hope you guys are familiar with the idea of stable marriage. आप लोगों ने probably DM में पढ़ा होगा. Stable marriage के अंदर क्या होता था? We had n set of boys and n set of girls, and we would like to make one party have the highest possible preference assigned to it. ठीक है? So there could have been no possible swaps and assignment in which both parties would actually be happier. So yeah, that's the general idea of stable marriage. This is a little similar to stable marriage. Lekin, what we're going to be trying to do is we're going to be trying to make a perfect matching in this graph. Now, what is a perfect matching? This node you can see is only connected to this guy. You can think of these as the same stable marriage. Yeah, you can just think of them as matching. Every node has to find a match on the left. Now, the idea is if you match this guy to some guy on the left, this guy, obviously this guy cannot also match this guy. Okay? So, a perfect matching is basically every node on the left has a match on some node on the right and exactly one distinct match. So, everyone basically gets a pair. Okay? Now, this is not going to be possible in every graph, right? Because हो सकता है कि
दिस गाय वाज कनेक्टेड दिस, इसकी मैंने कोई चॉइस लगाई, इसकी चॉइस लगाई, इसकी चॉइस लगाई, तो इसके पास जो चॉइसेस थे ना, लेट्स से इसको ये मिल गया, इसको ये मिल गया, इसको ये मिल गया, जो चॉइस बचा हुआ था ना, लेट्स से अगर यहाँ पे 5 नोट्स थे, पहले 5 जो थे, इन पांचों ने जब अपना पार्टनर चूज किया, तो उनके पार्टनर जो इनमें से चूज हो गए, ठीक है, इस ये पार्टनरशिप चूज हो गई। अब इस नोट की जब बारी आई, तो इसके पास सिर्फ इसका ऑप्शन था, but he doesn't have an edge to him, right? So this matching cannot be made. So it's possible that not every person can have a match. Now, if in your bipartite graph, the edges are in a way such that you actually can assign someone to someone, कि हर किसी को कम से कम एक पार्टनर, हर किसी को एग्जैक्टली exactly एक पार्टनर मिल सकता है, ठीक है। अगर सबको मिल सकता है कम से कम, मतलब एग्जैक्टली exactly एक पार्टनर, तो इसको हम कहेंगे अ परफेक्ट मैचिंग, ठीक है। नाउ a perfect matching is basically every node on the left side. Let's say there are n nodes over here, n nodes over here. Every node on the left side is going to be matched with exactly one node on the right side, and no node will have duplicate matchings, and no node will be left unmatched, which is implied by saying all n nodes have a match. ठीक है, you guys understand the idea of perfect matching? अब तक कोई सवाल है? बाइपार्टाइट क्या है, एजेस इसमें क्या है, वर्टिसेस इसमें क्या है, परफेक्ट मैचिंग से क्या मुराद है? अभी तक कोई सवाल है? ठीक है, I'm gonna assume किसी को नहीं है. Now we'll move on to Hall's theorem. Hall's theorem actually claims that if first let's understand the idea of subsets. ठीक है? This is my graph on the left. ठीक है? I can take some subset in L. So L is the vertices on the left wala side. So I'm going to take some subset in L, and keep in mind, if the size of L is this, ठीक है, if the size of L is this, L लिखा, पता नहीं इतना फजूल क्यों लिख रहा हूं मैं, L, what is the number of subsets you can actually make in a set of size L? If the size is L, if there are L elements in my set, how many subsets can I actually make from this set? Does anyone know the answer to this? It's like a straightforward answer. आपको probably रटा हुआ होगा अब तक. Does anyone want to guess what it is? Acha, it's 2 power L, in case you guys don't know. 2 power L, perfect. Okay. Yeah, it's 2 power L. And the idea for that is, if I have a set of elements, let's say this, whenever I make a subset is basically मैं इनमें से कुछ चुन रहा हूँ, ठीक है ना? अब यहाँ पर मैंने कितने नुक्ते बनाए हुए हैं? मैंने 6 बनाए हुए हैं. Any subset I make from these objects is gonna either pick, yeah, exactly, power set, perfect. Any set I make, sorry, did I say, yeah, I said how many subsets can I make, or the power set, yeah, okay. So how, I asked you guys, how many subsets can I actually make from a given set of size L, which is basically asking what is the size of the power set, ठीक है? A power set is the union of all the subsets of a set. So if you have a set and you're trying to make all the possible subsets, you basically either pick or not pick any element, ठीक है? Every subset can be described as basically 0 1 0 1 0 1, कि अच्छा मैंने पहला एलिमेंट लिया था या नहीं लिया था, अगला वाला लिया था या नहीं लिया था, अगला वाला लिया था या नहीं लिया था. इन दिस केस यहाँ पर 6 एलिमेंट्स हैं, तो हो सकता है मैंने पहला वाला नहीं लिया या लिया, अगला वाला ले लिया, अगला वाला ले लिया, अगला वाला नहीं लिया, अगला वाला ले लिया, नहीं लिया. Any subset can be described like this, है ना? Every subset, every unique subset will have some difference in some digits. So if you can basically describe each subset as a binary string of length L, how many binary strings do I have? Well, it's simply 2 power L. So that's basically the number of subsets that I can actually make in this. So if I had a set of vertices L यहाँ पर, ठीक है, अब मेरे पास कितने नोड्स हैं? L नोड्स हैं. मैं इसमें से सबसेट बनाऊंगा कि मैंने सिर्फ ये 3 ले लिए या ये 3 ले लिए. These are subsets, right? I can make any subset. If I choose any subset, I'm saying कि if I choose any subset in L, the number of the neighbors, the size of the neighbors, has to be at least equal to or greater than S का size. So let's understand what this is saying. This is saying कि अच्छा, अगर मैं कोई भी subset लूँ, इसमें से कोई भी group of elements ले लूँ, let's say I take this group of elements,
ठीक है, कंटिगुअस ऑब्वियसली होने नहीं जरूरत है, आई एम जस्ट टेकिंग एनी सबसेट। आसानी के लिए हम पहले तीन ले लेते हैं। पहले तीन का मैंने सेट लिया, दिस इज माई सबसेट एस। कहा यह जा रहा है कि इनके जो नेबर्स हैं ना, द ग्रुप ऑफ ऑल ओवर द नेबर्स, इनके नेबर्स पहली बात है देखते हैं कितने हैं। इस भाई साहब के एक है, इसके तीन है, और इसके जो है एक यहाँ पर आ गया और एक एक्स्ट्रा यहाँ पर आ गया। आई एम नॉट डिस्काउंटिंग एनीथिंग, लेकिन हाउ मेनी नेबर्स डिड आई फाइंड? एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर। So this subset, which was actually of only size 3, actually had a neighboring set of size 5. ठीक है? We saw that. Hall's theorem basically claims that if I can make a perfect matching in a bipartite graph, then every subset that I can make in L will have neighboring vertices either equal to the size of S, मतलब if I take any subset of size S in the left hand side, उसके मैंने जो नेबर्स लिए, जो बेसिकली राइट साइड पे जो उसके नेबर्स होंगे, द कनेक्शन, द सेट ऑफ ऑल द वर्टिसेस दैट हैव कनेक्शंस टू दीज वर्टिसेस इन एस, इफ आई टुक द साइज ऑफ द नेबर्स और उस सेट का साइज लिया, जो इस केस में हमारे पास 5 आया था, बाइपार्टाइट मैचिंग अगर परफेक्ट हो सकती थी, हॉल्स थ्योरम कह रहा है कि अगर परफेक्ट मैचिंग हो सकती है, then any subset of size S will have number of neighbors at least equal to or greater than. ठीक है, so this guy is greater than or equal to S. Does everyone understand the claim? Are there any confusions about the claim? ठीक है, everyone understand what this means? This basically says any subset in L, the size of the neighbors of those vertices in that set is going to be at least as big as S. तो अगर मैंने 3 vertices उठाए लेफ्ट साइड पर, उनके नेबर्स सारे देखे, तो कम से कम 3 तो होंगे, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। ज़्यादा कितने होंगे? L होंगे कि सारे के सारे आ गए, लेकिन कम से कम 3 तो होंगे। अगर मैंने 3 उठाए थे तो कम से कम 3 होंगे, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। अगर S साइज का सेट लिया तो कम से कम नेबर्स S साइज के तो होंगे या उससे ज़्यादा होंगे। ठीक है, we're gonna prove this, and Hall's theorem says कि there exists a perfect matching if and only if every subset in L has a neighbor size group equal to or greater than the subset size S. ठीक है, सो ये कह रहे हैं कि जब भी परफेक्ट मैचिंग होगी तो ये कंडीशन ट्रू होगी, और अगर ये कंडीशन ट्रू है तो परफेक्ट मैचिंग होगी। ठीक है, इट गोज बोथ वेज। नाउ देयर आर टू क्लेम्स हियर। The first claim is, let's call the claim A and B. A is if the set of ठीक है, this is the claim। अच्छा, if every subset in L has a neighboring group equal to or bigger than it, and the second claim is if there is a perfect matching। ठीक है, these are two events, यानी या तो ये इवेंट हुआ या इवेंट ये हुआ। We are saying कि A implies B and B implies A. Basically, we're saying A if and only if B. ठीक है, the claim that is being made by Hall's theorem is A if and only if B. This is fairly straightforward, right? यहाँ तक सबको समझ आ रहा है? There's Hall's theorem just saying कि there is a perfect matching if and only if this is true, which is the same as saying the ulta, कि this is true if and only if this. If and only if को जब भी प्रूफ करना है तो हम क्या करते हैं? हम दिखाते हैं कि A implies B and B implies A, तो हमें दोनों डायरेक्शंस प्रूफ करनी है। Now, which direction is really easy to prove? Does anyone want to guess, like just off the top of their head, which of these explanations, which of these proofs is actually very is very trivial, it's very obvious? The second claim is actually very easy. Okay, if there is a perfect matching, then there has to be
every set has a equal sized neighbor or a bigger neighbor. ठीक है, अगर परफेक्ट मैचिंग है तो हर सबसेट के पास इक्वल मैचिंग या बिगर मैचिंग होगी. हाउ इज दैट प्रूवेबल? लेट्स मेक अ बाइपार्टाइट ग्राफ. एक्चुअली लेट्स जस्ट गो टू द प्रीवियस वन. ठीक है, फर्स्ट कर लीजिए हमारे पास जो मैचिंग आई थी वो इस तरह की थी. ये इसको ये मिला, 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 इसको ये मिला. ठीक है, इमेजिन दैट वाज अ मैचिंग. इसलिए मेरे पास ग्रुप बना नहीं था तो लग रहा है कि गलत बनाया है मैंने. हाँ ठीक है, ओके. नाउ यू कैन सी देयर इज एन एज एंड आई हैव हाइलाइटेड द एज. सो दिस इज द मैचिंग दैट आई मेड. ठीक है, नाउ हम प्रूव करना चाह रहे हैं कि इफ देयर इज अ परफेक्ट मैचिंग देन दिस कंडीशन इज ट्रू. Every subset will have a larger or equal to neighboring set. ठीक है, we're going to try to prove this. Okay, we're going to start with this assumption. We're going to show this event is true. अच्छा, if there is a perfect matching then I can make that perfect matching. तो वो मैंने बना दी यहाँ पे. ठीक है, if there is it we can just see what it is. ठीक है ना, once we see what it is, take any subset in L. Suppose करें ये 3 लिए. Can I find an equal number of neighbors of this set? Obviously, because इन तीनों की तो मैचिंग हुई भी है ना, तो उन तीनों को चुन लो. नेबरिंग सेट बन गया ना, कम से कम 3 का तो बन गया. कोई भी वर्टेक्स ले लूँ उसका नेबरिंग सेट विल बी मेड ऑफ ऑल ऑफ द चॉइसेस इन दैट सेट. अगर मैंने इसको लिया, इसको लिया और इसको लिया और मैंने कहा कि इसका नेबरिंग ग्रुप बनाओ, इसके नेबरिंग ग्रुप में कम से कम ये और ये तो होगा ना, तो जाहिर सी बात है ला महाला कम से कम इतने नेबर्स तो हैं तभी परफेक्ट मैचिंग बनी है, वरना तो परफेक्ट मैचिंग बनी नहीं सकती. हर किसी की बनी है तो किसी भी ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स को मैं लूंगा, उनकी परफेक्ट मैचिंग कम से कम उतना ही ग्रुप्स नेबर्स में होंगे. सो दिस पार्ट ऑफ द प्रूफ इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. द रिवर्स पार्ट इज स्लाइटली ट्रिकियर. द रिवर्स पार्ट इज सेइंग कि अच्छा, इफ आई हैव a graph that is bipartite and every set inside the left side has an equal or bigger size neighboring set on the right, then that means there has to be a perfect matching. This is a slightly harder problem. ठीक है, हमारे पास जो information है is slightly harder to visualize. First understand what the claim is. The claim is कि हमारे पास जो set L है, left वाले vertices हैं, उसके अंदर कोई भी सबसेट ले लो, उसका जो नेबरिंग सेट होगा वो उससे बड़ा या उतना बड़ा होगा. We know this is true for our graph and this is true for every subset in L. ठीक है, this is the claim we're working with. Now we're actually not going to show that this is true. We're not going to show that A implies B. We're going to show not A bar implies B bar, which is, if you think about it, it's the same thing. ठीक है, हमें दिखाना था कि इन दिस केस गोना बी द सेम थिंग. अगर मैंने दिखा दिया कि जब A नहीं होता तो B नहीं होगा, तो ला महाला बिकॉज आई शो द रिवर्स डायरेक्शन, जब A हो रहा होगा तो फिर B भी हो रहा होगा, विच इम्प्लाइज कि अच्छा A इम्प्लाइज B. इस पे ज़्यादा देर हम बहस नहीं करेंगे बिकॉज दिस इज नॉट, आई डोंट वांट टू डेल्व इनटू दिस. इफ यू गाइस डोंट गेट दिस, इट्स जस्ट यस, इफ यू नॉट गेटिंग दिस इज जस्ट एन इंट्यूशन टू रैप योर हेड अराउंड. लेकिन यू गेट दिस अगर अपने तौर पे वीडियो आप रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं. लेकिन खैर, व्हाट वी आर गोना डू इज वी आर गोना प्रूव कि अगर हमारे पास मैचिंग नहीं बन सकती, सॉरी हाँ, अगर हमारे पास सारे सेट्स के अंदर नेबरिंग सेट इज नॉट ऑफ इक्वल साइज और बिगर, मतलब देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन एस, we're considering A bar. A bar is basically the opposite of this, कि this condition is not entirely true. इस कंडीशन ने कहा था कि सारे सेट्स के पास एटलीस्ट इक्वल और बिगर नेबरिंग सेट्स हैं. मैं कह रहा हूं कि कम से कम एक सबसेट है इसके अंदर, सॉरी मैं उल्टा कर रहा हूँ ना, हाँ I'm doing the उल्टा थिंग, हाँ सॉरी. So I'm gonna, हाँ सॉरी यार, I'm gonna show that I've already showed that B implies A. I'm gonna show that not B implies not A. ठीक है, and this will show both directions. Sorry, the previous statement I made was completely wrong. I'm going to show that अगर this statement is not true तो फिर ये वाली statement भी true नहीं है. ठीक है, so then I will actually show both direction. Sorry, कुछ कह रही थी? We would like to show this claim. I have already showed this claim. ठीक है, this was simple.
What I'm going to do is I'm just going to show that अच्छा अगर not B हुआ तो फिर A भी नहीं होगा. सही है. I've already showed that if B happens then A also happens. मैं दिखाऊंगा कि अच्छा अगर B नहीं होगा तो फिर A भी नहीं होगा. तो जब भी B होगा A होगा, जब भी B नहीं होगा A नहीं होगा. And this goes both ways. ठीक है, that's what I'm going to show. So, sorry, let's start over. The claim I'm going to show is if there is not a perfect matching, then this claim is also not true. ठीक है, I'm going to show कि अच्छा अगर perfect matching नहीं हो सकती, then there must be some subset in L जिसका neighboring set उससे छोटा है. मैं ये दिखाने की कोशिश करूंगा. Is the foundation of the claim, the working I'm about to do, clear? Because then we can actually move on to the proof. The proof is not that hard. It's fairly simple. Just we'll approach it slowly तो समझ आ जाएगा. Does everyone understand what we're about to do? कि working क्या करने वाले हैं? ठीक है, I'm gonna assume सबको समझ आ गई हम क्या कर रहे हैं. Okay, सबसे पहली बात तो ये है कि we're gonna start by our अच्छा actually let's just अच्छा the graph they made was this. 4 nodes हैं. And this वाला ठीक है. अच्छा इस ग्राफ की परफेक्ट नहीं बन सकती. ठीक है, हाँ, ओके. Now, अच्छा, let's observe this graph. There's 4 vertices on the left side and 4 vertices on the left side or on the right side. अगर मैंने इसकी so let's say this guy only has one edge, so let's start by perfect matching this entire graph. This guy only has one here and this guy only has one here. तो लामाला इन दोनों की तो पहले कर देते हैं. अब जो दो बचे हुए हैं जिसका भी किया अगले का नहीं हो पाएगा. अगर मैंने इसका कर लिया तो इस भाई साहब का नहीं हो पाएगा. क्यों नहीं हो पाएगा? हैं? इसका ये हो गया, इसका ये हो गया, इसका ये हो गया. हो तो रहा है. Am I doing something wrong? इसका ये हुआ, इसका ये हुआ. हैं? What the fuck? Did I draw the graph wrong? एक second, sorry. So this guy is connected to this guy, this guy is connected to this guy. This guy has 3 edges, this guy has 2 edges. अच्छा. Oh नहीं, इसमें perfect matching है, never mind. खैर, you get the idea. अच्छा खैर, what we're gonna do is, अच्छा this graph does have a perfect bipartite matching. Sorry, I'm following the solution of the book. हाँ, तो when you're actually given a graph with a bipartite partitioning, ठीक है, and you would like to find out क्या इसके अंदर हम perfect matching कर सकते हैं. Perfect matching का basically मतलब है every node can be linked to one node, है ना, individually. Another way to look at this problem is basically we can make a source node over here called S and we can make a sink node over here called T. ठीक है? Now we're going to make a directed graph like this. ठीक है? And every guy on this edge connects to this guy. ठीक है? I'm sure, I think sir has done this with you. Has sir done this with you? या नहीं? ठीक है. अच्छा, मैंने दरमियान वाले एजेस पर एरोज नहीं बनाए हुए, बट यू गाइस गेट द आइडिया कि यहाँ पर जितने भी एजेस हैं, these all are directed towards this guy. एंड जो लेफ्ट साइड पर एजेस हैं, these are all directed towards the right. ठीक है? तो यहाँ पर जितने भी एजेस हैं, ठीक है. So whenever you're given a bipartite graph and you would like to find out, can I actually find out a bipartite matching for this? What you do is you just make a source node that connects to the entire L wala side. This is the L wala side. ठीक है? And this is the R wala side.
ठीक है. Now, whenever you're given a bipartite matching, if you want to find out if you can actually make a perfect matching, आप क्या करोगे? आप एक सोर्स नोड बनाओगे यहाँ से यहाँ तक, ठीक है? एंड you're gonna basically say कि इन सब के पास कैपेसिटी है 1 1 1 1, और इन आने वाले रास्तों के पास पर भी 1 1 1, सबके पास 1 1 कैपेसिटी है, और जितने भी एजेस इनके दरमियान हैं उनके पास भी 1 एज कैपेसिटी है, ठीक है? अब हम क्या करेंगे? we're gonna try to flow the maximum amount of water from the left side to the right side. ठीक है. नाउ यहां से आगे सिर्फ एक फ्लो जा सकता है, सो एक मतलब लीटर ऑफ पानी है, एक यूनिट ऑफ पानी आगे जा सकता है. सो आगे जो पानी जाएगा और जो रिसीव हो रहा है वो भी सिर्फ एक ही यूनिट हो सकता है. सो इफ लेट्स से आई कैन सेंड 4 लीटर्स फ्रॉम हियर टू 4 लीटर्स टू देयर, फॉर 4 यूनिट्स पानी मैंने लेफ्ट से भेजा और पूरा 4 का 4 मैक्स फ्लो टी तक पहुंच रहा है, तो इसका मतलब है देयर आर सम पाइप्स दैट आर एक्टिव. तो जो पाइप्स एक्टिव हैं दोज आर बेसिकली आवर परफेक्ट मैचिंग, बायपार्टाइट मैचिंग. So whenever we have a bipartite matching problem, we just make a source node that connects to L and connect all of the R to a sink node. And we try to find out the maximum flow of this graph. If the maximum flow is equal to N, where N is the number of vertices, N is the number of vertices, 4 है यहाँ पे, N is equal to 4. ठीक है? So whenever you have this problem of bipartite matching, we just make a graph and you throw water through that graph, or you just solve the max flow problem, or you find the min cup. It's the same thing. You find the max flow of this graph, and if you can find the max flow, and the max flow is equal to uh, if the max flow is equal to n or equal to 4, then that means there is a bipartite matching, perfect bipartite matching, right? Is this idea clear? इसके बारे में कोई सवाल है? Does anyone want me to is this reduction not intuitive, या कुछ समझ नहीं आ रहा है इसके अंदर क्यों ये why this holds true? I think this is fairly clear कि अगर इसका मैक्स फ्लो 4 होगा, इसका मतलब पूरा का पूरा 4 पानी यहाँ से जा सकता है एच तक. इसका मतलब जो दरमियान में जो रास्ते इस्तेमाल किए गए होंगे वो आपके मैचिंग बन गए होंगे, तो इसका मतलब है 4 मैचिंग्स बन गई आपकी, तो वो रास्ते आपके 4 परफेक्ट मैचिंग हो गई आपकी, ठीक है? सो रिमेंबर, इफ देयर एग्जिस्ट अ बायपार्टाइट मैचिंग देन द मैक्स फ्लो इज n, ठीक है? लेट्स से दैट देयर इज नो बायपार्टाइट मैचिंग, ठीक है? बिकॉज दैट इज द क्लेम वी वर स्टार्टिंग ऑफ एट. हमने यही कहा था ना कि वी वुड लाइक टू शो कि इफ देयर इज नो बायपार्टाइट मैचिंग then that implies not A. That is what we would like to show. So keep in mind what is the overall arching goal here. We're going to show कि अच्छा if there is a graph और इसके अंदर bipartite matching perfect नहीं हो सकती, तो इसका मतलब है A भी not true होगा, कि मतलब ये condition true नहीं होगी, ठीक है? पहली बात तो अगर एक ग्राफ के अंदर bipartite matching perfect नहीं हो सकती, तो उसका मतलब है उसका max flow is smaller than n, ठीक है? It's smaller than 4 or smaller than the number of vertices that you have on the left side or the right side, एक ही बात है, ठीक है? This claim is fairly obvious. If there is no bipartite matching, let me write this down. If no perfect matching, then max flow is smaller than n, strictly smaller, not smaller than equal to, strictly smaller than n, ठीक है? अच्छा, अब हम क्या करेंगे? मैक्स फ्लो निकालो या मिनकट निकालो, ये एक ही बात है डुअलिटी की वजह से, वी नो दिस. मिनकट का क्या मतलब है? मिनकट का मतलब है कि अच्छा द मैक्स फ्लो फ्रॉम एस टू टी इज बेसिकली द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ एजेस दैट आई कैन बेसिकली फ्लो ऑफ वाटर दैट आई कैन सेंड फ्रॉम एस टू टी, राइट? मिनकट का क्या मतलब है कि मैं व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ एजेस कैपेसिटी, मिनिमम नंबर ऑफ कैपेसिटी दैट आई रिमूव फ्रॉम दिस ग्राफ सच दैट एस से लेकर टी तक कोई भी रास्ता नहीं है, ठीक है? नाउ वी कैन ऑब्वियसली से कि 4 हटा दो, इसमें तो कोई बड़ा काम नहीं है कि अच्छा एस से टी तक रास्ता रखना था, 4 हटा दिए, ठीक है? लेकिन अभी हमने कहा है कि देयर इज नो परफेक्ट मैचिंग, ठीक है? इस ग्राफ को मैं थोड़ा सा ना कहीं से मैं फाड़ रहा हूँ ताकि आपको लगे कि वो रास्ता नहीं है. से यहाँ से फट गया है, जो जितना भी यू गाइस गेट द आइडिया. So now this partite, the implication here is that I changed this graph and this does not have a perfect matching. हो सकता है अभी तक है, लेकिन you guys just assume for now that there isn't. ठीक है? Now, if there is no perfect bipartite matching, then that means कि इसका max flow less than n है, तो इसका min cut भी less than n है,
ठीक है, तो इसका मतलब है आई कैन रिमूव लेस देन n एजेस और s से लेकर t का रास्ता बंद हो सकता है। ठीक है, तो वो एजेस हो सकते हैं यहां पर मैंने कुछ काटे, यहां से कुछ काट दिए, यहां से कुछ काट दिए। लेस देन n का मतलब है कि 4 के बजाय अगर 4 4 के मिन कट 4 होना तो कोई बड़ी बात है ही नहीं। 4 में तो जाहिर सी बात है काट सकता हूँ, 4 का कट करना को तो कोई बड़ी बात ही नहीं। मिन कट अगर 4 से कम हो रहा है इसका मतलब है आई कैन कट इन लेस देन 4 एजेस। अच्छा, अगर फ्लो n से कम था तो मिन कट भी n से कम था, इसका मतलब है कि मैं n से कम एजेस को हटाऊंगा इसमें से। और बिकॉज यू नो एवरी एज हैज कैपेसिटी 1 के, बिकॉज so every edge has capacity 1, तो if the min cut की capacity है less than n, that means I'm removing less than n edges because हर edge की capacity 1 है, you know, obviously that's implied. तो इसका मतलब है कि I can find out less than n edges between s and t, जिसको मैं हटाऊंगा तो s और t के दरमियान कोई रास्ता नहीं रहेगा। तो बेसिकली मीन्स 3 edges हटाए या 2 edges हटाए या सिर्फ एक edge हटाया, और उससे इसका पूरा रास्ता बंद हो जाएगा। ठीक है, दैट्स द की क्लेम हियर कि अच्छा अगर मैक्स फ्लो लेस देन n था तो मिन कट भी लेस देन n है। ठीक है, नाउ लेट्स से देयर वाज सम मिन कट। फर्स्ट कर लीजिए मिन कट था, फर्स्ट कर लीजिए मिन कट आ रहा था, इस रास्ते को बंद किया आपने, इस रास्ते को बंद किया, और आपने एक्चुअली पता नहीं इस रास्ते को बंद किया और इस रास्ते को बंद किया। फर्स्ट कर लीजिए मिन कट इस तरह का कुछ आ रहा था कि आपने दरमियान में से ये 3 हटाया तो हट गया। हो सकता है मिन कट यहाँ का कोई एक एज हटा रहा हो, लेकिन मैंने दिखाया कि अच्छा तीनों के तीनों सेंटर वाले सेक्शन में थे। हो सकता है मैं यहाँ के एजेस हटाऊं, हो सकता है मैं यहाँ के एजेस हटाऊं, या हो सकता है मैं यहाँ के एजेस हटाऊं। ठीक है, फॉर सिंप्लिसिटी इन द वर्स्ट केस फर्स्ट कर लीजिए हमने सारे एजेस जो है ना दरमियान से हटाए हुए हैं। पहली बात तो ये है कि हम करेंगे कि जो भी एज दरमियान में था ना उसको या तो लेफ्ट पर भेज दो या राइट पर भेज दो। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अच्छा मिन कट के अंदर मैंने जो 3 एजेस हटाए थे इनको परफेक्टली डिस्कनेक्ट करने के लिए वो अभी फिलहाल हमने ये इस्तेमाल किए थे। ठीक है, फिलहाल हमने इन तीनों को कट किया तो एस से लेकर टी तक का रास्ता कट गया। सही है, अब हम क्या करेंगे, हम इस एज को रिप्लेस कर लेंगे या तो इस एज से या इस एज से, बात एक ही रहेगी। ठीक है, अगर ये आपका रास्ता काट रहा था तो अगर मैं इस रास्ते को बंद कर दूं तो बात वही रहेगी। दैट्स द सेम आइडिया राइट, या तो और आगे से रास्ते बंद हो जाएंगे, बिकॉज अगर इसको मैं रास्ता कट रहा था तो ये वाला रास्ता बंद हो रहा था और ये वाला रास्ता बंद हो रहा था। ठीक है, मैंने क्या कहा कि अच्छा इंस्टेड ऑफ कटिंग ऑफ दिस एज आई एम गोना पूरा कट ऑफ दिस एज, तो ये रास्ता तो लामहला बिल्कुल ही बंद हो गया, आगे के जितने भी रास्ते थे ना आगे से वो भी बंद हो जाएंगे। ठीक है, तो कम से कम वो रास्ता तो बंद हो गया। तो व्हाट आई एम गोना डू इज एवरी एज दैट इज अकरिंग इन हियर दैट वाज इन द मिन कट, जो भी मिन कट वाले एजेस जो दरमियान वाले सेक्शन के अंदर आ रहे थे ना उनको मैं या तो लेफ्ट पर डाल दूंगा या मैं राइट पर डाल दूंगा। तो लेट्स डू दैट राइट नाउ। तो लेफ्ट पर आ रहा था, लेट्स से जो ये वाला एज है ना, ये वाला, इसको उठा के मैं डाल देता हूँ राइट पर, ये वाला रास्ता बंद कर देता हूँ। इट्स द सेम आइडिया, अगर मैंने आगे का रास्ता बंद कर दिया तो लामाला दरमियान से तो पानी बिल्कुल फिर भी नहीं आ सकता। और इस एज के लिए मैं क्या करूंगा, इसको मैं लेफ्ट पर यहाँ पे डाल दूंगा। ठीक है, सो जो दरमियान का रास्ता बंद हो रहा था इससे वो मैंने यहाँ पर ही बंद कर दिया। तो वही बात है, अब द मिन एज कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द 3 एजेस दिस एंड दिस। सो नाउ व्हाट you've डन इज you've essentially मेड द मिन कट वाले एजेस बी इन दिस सेक्शन और इन दिस सेक्शन। ठीक है, अच्छा कुछ मिनकट के जो एजेस आपने काटे हैं वो एस से लेकर एल तक जाने वाले थे, और कुछ जो हैं वो आर से लेकर टी तक जाने वाले थे। ठीक है, अब जो एजेस जो वर्टिसेस इसके अंदर आए थे ना, जो वी इसके अंदर आए थे उसको हम कह देंगे सेट एक्स है, और जो वी इसके अंदर आए थे ना उसको हम कह देंगे सेट वाई है। ठीक है, व्हाट इज द विजुअलाइजेशन ऑफ सेट वाई एंड एक्स? एक्स इज बेसिकली गोना बी ये वाला सेट, कि जो लेफ्ट साइड वाले एज वर्टिसेस थे जिन पर मिनकट पड़ रहा है, देखो ना एस से लेकर एल तक जा रहा हूं मैं ना, तो जो वर्टिसेस इस एस के अंदर वो जा रहे थे ना रास्ते के अंदर मिनकट वाले के अंदर, ये वाले और ये वाले, दिस इज माई सेट एक्स। एंड जो यहां पर कट रहे थे ये वाले, इनमें से जो इसमें कट रहे थे वो यहां पर आ जाएंगे। ठीक है, इसको हम कह देंगे सेट वाई। तो कुछ वर्टिसेस यहाँ पर होंगे, कुछ वर्टिसेस यहाँ पर हमारे मिन कट वाले पाथ के अंदर कट रहे होंगे। याद रहे वर्टेक्स नहीं कहीं जा रहा, एज कट रहा है। तो द वर्टेक्स दैट जस्ट लॉस्ट एन एज, दोज आर इन एक्स एंड दोज आर इन वाई। ठीक है, अभी तक फेयरली क्लियर।
Now we're going to say the size of x is x and the size of y is y. ठीक है, पहली बात तो ये है कि कैन एनीवन टेल मी what is the value of x plus y smaller than? X plus y has to be smaller than. Does anyone want to answer? It has to be smaller than what value? Remember, x basically represents the number of edges I cut on the left side or the number of vertices on the left side. And y represents the number of vertices on the right side or the number of edges I cut on the right side. Okay? So x plus y is the total number of edges I cut. So this amount has to be smaller than what? Does anyone want to answer? तुक्का मार दो, कुछ भी कहो. I just want to gauge कि यहाँ तक कितना समझ आ रहा है. Does anyone want to make any guess whatsoever? किसी को भी नहीं. ठीक है, so 2n plus, so Zoha says 2n plus 2. Zoha, do you want to explain why that is true? N nodes of L. So yeah, you're going to be smaller than n nodes of R and n nodes of L. So yeah, and प्लस टू की ज़रूरत भी नहीं है बिकॉज इसको तो आप काउंट नहीं कर रहे, क्योंकि ये वाला वर्टेक्स तो नहीं डाल रहे आप ग्रुप के अंदर, और ये वाला वर्टेक्स भी नहीं डाल रहे, तो सिर्फ ये वाला है ना. तो जो अगर मैं आपके क्लेम को दोबारा कहूँ कि हर एज जो भी था वो एक वर्टेक्स को काउंट कर रहा था और हर एज जो भी था वो इसको काउंट कर रहा था. ठीक है, सो जो एजेस मैंने राइट से लिए होंगे दैट हैज़ टू बी स्मॉलर देन एन यहाँ पर, एंड जो मैंने एजेस राइट साइड से लिए होंगे दैट हैज़ टू बी स्मॉलर देन द नंबर ऑफ वर्टिसेस यहाँ पर. दैट्स फेयर, दैट्स ट्रू. डू यू एग्री? Okay, so 2n. So yeah, so you found a tighter bound, right? 2n. Ab Zoha, you can actually make it even tighter because you know that, think about what the minimum, ये जो मैंने edges काटे थे, ये कौन से edges मैं काट रहा था? ये मैं min cut वाले edges काट रहा था, है ना? और मैंने min cut कहा था, वो min cut और max flow एक ही चीज होती है, और मैंने कहा था max flow जो है n से कम है, तो min cut भी n से कम है, जितना min cut है उतना max flow है. Max flow is some value smaller than n. Let's say it's k. ठीक है, it's some value that is less than n. जो मैंने edges काटे हैं those are also equal to k, है ना? बिकॉज जितना मैक्स फ्लो था उतने ही मैंने एजेस काटे हुए हैं, क्योंकि हर एज का एक फ्लो था, जितने मैक्स फ्लो हो रहा था. मैंने कहा था फर्स्ट कर लीजिए अगर मैक्स फ्लो 4 है तो इसका मतलब है द मिन कट इज 4, लेकिन मैंने कहा अभी कि मैक्स फ्लो n से कम है तो फर्स्ट कर लीजिए 3, तो द मिन कट इज 3, सो आई ओनली नीड 3 एजेस टू डिस्कनेक्ट s and t, सो आई डिस्कनेक्टेड 3 एजेस. जब मैंने 3 एजेस डिस्कनेक्ट किए तो मैंने यहाँ से 2 लिए, तो यहाँ पे 2 वर्टिसेस काउंट कर रहा हूँ मैं x के अंदर, और यहाँ से मैं एक वर्टेक्स कर रहा हूँ काउंट कर रहा हूँ r के अंदर, y के अंदर. सो द नंबर ऑफ वर्टिसेस या इस ग्रुप के अंदर इज गोना बी हाउ मच? इज गोना बी k, द नंबर ऑफ एजेस आई एक्चुअली कट, which has to be smaller than n. So x plus y is actually smaller than 2n, तो लामा बिल्कुल है ही, सही बात है. We can actually make an even tighter bound. It's going to be smaller than n, right? Because x plus y is equal to k, which is equals to the max flow or the min cut, right? That's true. That's fairly clear. And so the sets I made x and y, perfect. So the sets I made x and y are basically going to be the number of edges I cut, or they're going to be the max flow की value. ठीक है, think of it as the min cut, think of it as the min cut वाले edges. So this value has to be smaller than n. ठीक है, now this is the final statement. हम प्रूफ क्या करना चाह रहे थे? हम प्रूफ करना चाह रहे थे कि अच्छा अगर b वाली स्टेटमेंट नॉट ट्रू है, if b is not true then that implies that a is not true. In English we were saying agar if there is no perfect matching, then this event is not true, then this condition is not true, which basically means if there is no perfect matching then that means there is some subset in L जिसका नेबरिंग सेट उससे छोटा है, उसकी लेंथ या उसकी लेंथ से बड़ा नहीं है, वो उससे छोटा है. देयर इज सम सबसेट इन L जिसका जो नेबरिंग सेट है वो
एस से छोटा है देन दैट सबसेट. ठीक है, फर्स्ट अंडरस्टैंड द क्लेम. We're going to show which subset that is. Look at the vertices we have. हमने x कौन से लिए? हमने ये वाला लिया है और ये वाला. So basically this guy and this guy. Take the leftover vertices. The leftover vertices are basically represented as left side में से minus कर दो set x. This is basically equal to L minus x. The simple, the intuitive way to write this is L minus x. Just get what this is. This basically means इस set में से ये set निकाल दो. ठीक है, तो L इसको पता नहीं एग्जैक्टली क्या करते हैं, लाइक दिस पार्टीशन या अनपार्टीशन ऐसा कुछ कहते थे. सो एल डिसजॉइंट एक्स ऐसा कुछ कहलाता था. सो एल से एक्स वाले वर्टिसेस हटा दो, जो वर्टिसेस हटे दैट जो वर्टिसेस रह गए हैं वो हमारा सबसेट होगा एस. और अब हम दिखाएंगे कि सबसेट एस का जो साइज है इट इज स्मॉलर देन द साइज ऑफ द नेबरिंग सबसेट, नेबरिंग सेट, सॉरी, नेबरिंग जो एजेस हैं. हम किस तरह दिखाएंगे? पहली बात तो ये है कि हमारा जो सेट एक्स था ये वो एजेस थे जिनके रास्ते कट गए थे. ठीक है, तो ये रास्ते कट गए थे. सही है. हमारे पास जो एजेस बचे हुए हैं ये वाला और ये वाला, क्या इनके पास कोई रास्ता हो सकता है एस को लेके जाने का, यहां से लेकर टी तक? इनके पास कोई रास्ता है? कैन आई गेट फ्रॉम एस टिल टी इन एक्स बार? एक्स बार इज बेसिकली द रिमेनिंग सेट, मतलब जो बचे हुए हैं. I think you can. So if you could, that would mean that the min cut wasn't true, right? So the min cut implies कि अगर मैंने ये दोनों एजेस हटा दिए तो S से लेकर T तक कोई रास्ता है ही नहीं. या बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, perfect. So you're understanding this. So if the min cut is true, कि अच्छा min cut ने कहा ही ये था कि अच्छा अगर min cut 3 है तो मैं फर्स्ट कर लीजिए ये और ये एज हटा रहा हूँ, तो मैं उन दो एजेस को हटा दूं. इसका मतलब है अब एस से लेकर टी तक कोई रास्ता नहीं है. ऑब्वियसली यहां पर अभी तक ये एज कटा है तभी रास्ता नहीं है. सही है. तो इसका मतलब है कि इन दो और इसको हटाने के बाद, लेकिन जस्ट लेट्स, बिकॉज ऑब्वियसली वी कट ऑल थ्री, लेकिन जस्ट फोकस ऑन दीज टू राइट नाउ. कि अच्छा इन दोनों के जब इन दोनों के रास्ते बंद कर दिए तो लामाला इनसे तो कोई रास्ता है नहीं जाने का टी तक, वरना इनको भी काटना पड़ता मिनकट के अंदर. मिनकट से इम्प्लाइड ऑटोमेटिकली है कि जो बचे हुए हैं ना एक्स के अंदर ये है और ये है. दीज आर द वर्टिसेस इन एक्स. विच आर द वर्टिसेस नॉट इन एक्स? एक्स बार. एक्स बार के अंदर ये भाई साहब हैं और ये भाई साहब हैं. सही है. इन दोनों से तो कोई रास्ता है नहीं टी तक. तो व्हाट कैन यू से अबाउट द नेबरिंग सेट ऑफ दिस? वर एक्चुअली, सो पहली बात है, लेट्स जस्ट सिंप्लीफाई दिस. आई सेड एक्स बार इज बेसिकली एल में से एक्स का सेट हटा दो. x bar is basically x से जो बचे हुए थे वो x bar हैं. That is going to be our subset in L. We're going to show that the size of this subset is smaller than the neighboring set का size of these guys. How is that true? Well, look at this set. Look at the subset y and y bar. y के अंदर कौन सी चीजें हैं? y के अंदर है ये वाला नोड और y बार के अंदर क्या है? ये वाले नोड्स. ठीक है. अब देखो y में जितने भी वर्टिसेस थे उनके रास्ते कटे हुए हैं. फिलहाल सिर्फ एक ही नोड है, लेकिन फर्ज कर लीजिए दो नोड होते, अगर ये नोड भी हमारा ग्रीन होता. y के अंदर जितने भी नोड्स हैं उनके आगे के रास्ते कट चुके हैं. ठीक है. तो जो भी वर्टिसेस यहां पर हैं बाकी एजेस के रास्ते नहीं कटे हुए. ठीक है ना. याद रहे कि y के अंदर जितने भी वर्टिसेस हैं, फर्ज कर लीजिए अभी सिर्फ ये है तो इसका रास्ता कटा हुआ है. y बार के अंदर बकिया सारे नोड्स हैं, उनके पास रास्ते हैं टी तक पहुंचने के लिए. ठीक है. तो इसका मतलब है अगर x बार के अंदर कोई वर्टेक्स मैं उठाऊं, फर्ज कर लीजिए ये, उसका नेबर अगर y बार के अंदर आ गया तो फिर रास्ता बन जाएगा पूरा s से t तक पहुंचने का. ठीक है. I'll say that again. अगर x बार के अंदर कोई मैंने वर्टेक्स उठाया, फर्ज कर लीजिए ये वाला, if that vertex has a neighbor in y bar, ये वाले the vertices जिनके रास्ते कटे हुए नहीं थे, अगर इसके पास इस सेट के अंदर नेबर आ गया तो फिर इसका रास्ता पूरा हो जाएगा, which is not true.
तो इसका मतलब है इसके नेबर्स सिर्फ y के अंदर एग्जिस्ट कर सकते हैं, बिकॉज उनके रास्ते कटे हुए हैं, तभी उनका आगे रास्ता नहीं है। तो x बार के अंदर जितने भी वर्टिसेस हैं उनके सारे नेबर्स ज़्यादा से ज़्यादा y के अंदर एग्जिस्ट कर सकते हैं। What does that tell you? That tells you that the size of the neighbors of S is ज़्यादा से ज़्यादा the size of Y. ठीक है, that claim is fairly obvious, which means you are smaller than equal to Y. ठीक है, and let's look at an inequality over here. ये इस inequality को rearrange करते हैं. Let me just rewrite this. X plus Y is smaller than n लिखा था ना. I wrote X plus Y is smaller than n. This implies कि Y is smaller than n minus X. ठीक है, तो इसका मतलब है हमारे जो नेबर्स का साइज आया था दैट हैज टू बी एट मोस्ट y का साइज। ठीक है, क्योंकि उनके पास ही रास्ते बनते। अगर मेरे पास ऐसे वर्टेक्स में किसी एज होता जिसके रास्ते खुले हुए तो मेरे पास पूरा रास्ता आ जाता। सो दीज गाइज द नेबर्स ऑफ द सबसेट आई टुक x बार, दैट इज माई s। इनके जितने भी नेबर्स हैं वो सारे के सारे y में एग्जिस्ट करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा पूरा का y का सबसेट होगा, पूरा का y सेट होगा। ज़्यादा से ज़्यादा उसकी साइज कितना होगा, y होगा। y कितना बड़ा है, वी नो y इज स्मॉलर देन n माइनस एक्स, हमने यहां पे दिखाया है। ठीक है, n माइनस एक्स बेसिकली क्या है, x का साइज था x, और x और पूरा जो सबसेट है l जिसमें से मैंने x निकाला हुआ है उसका साइज कितना है, इज बेसिकली n माइनस एक्स एलिमेंट्स। तो x बार का साइज क्या है, n माइनस एक्स, है ना। और आई कुड जस्ट सिंपली राइट दिस एज x के अंदर x एलिमेंट्स हैं, बकिया एलिमेंट्स जो हैं वो है n माइनस एक्स। These are the vertices on the left side that are not in the set x. So these are n minus x vertices. So this basically means this is the size of x bar. ठीक है, let me just clearly write this. This is the size of x bar. सही है, so that implies y is smaller than the size of x bar. और हम किस सबसेट की बात कर रहे थे, हमारा जो सबसेट था वो क्या था, x बार ही था। We just showed that the size of the neighbors of x bar is smaller than y, or smaller than or equal to y, which is smaller than x bar. So we just showed that the neighbors of x bar are smaller than the size of x, which is the claim we wanted to show. We wanted to show that our neighbors are less than a set. ठीक है, हमें बस दिखाना था कोई एक ऐसा सबसेट है जिसके नेबर्स जो हैं उससे कम हैं, उसके उसके अपने साइज से छोटे हैं। एनी क्वेश्चंस ऑन दिस? अगर नहीं है तो वी कैन एंड द मीटिंग। कोई चीज़ जो नहीं समझ आए, कोई चीज़ यू वांट मी टू गो ओवर वन मोर टाइम, ओवरव्यू, रिव्यू, रिकैप, कोई भी क्लेम जो नहीं समझ आई थी, फाउंडेशन नहीं समझ आई, शुरू की कोई चीज़ नहीं समझ आई। अच्छा, आई एम गोना स्टॉप द रिकॉर्डिंग।